Our today's class is for class 12th, and we are learning subject geology. In the topic earthquakes, we have discussed the types of earthquakes, effects of earthquakes, causes, what are the different scales which measure the earthquake, Richter scale, what is seismograph, seismometer, seismogram. Now, in today's class, we will try to understand seismic belts of the world. So, in the world, how the earthquake epicenters have been distributed. Earthquake epicenters are not randomly distributed over the globe, but they tend to occur in narrow, continuous belt of marked instability. So they have not distributed randomly. The well-defined belts which have been recognized as these belts are pruned earthquakes. The name of these three belts are: number one, the Circum-Pacific Belt, seismic belt surrounded by Pacific Ocean; the Mediterranean and Trans-Asiatic Belt, also known as Alpine Himalayan seismic belt; and the third one is the Mid-Oceanic Ridge and the African Rift System. The Circum-Pacific seismic belt, which is surrounded by this Pacific Ocean, which is surrounded by the different countries, or this ring, which ring resembles with, or we can say this is also the ring of fire which we have discussed or learned in the previous unit, volcanoes, rather previous topic, volcanoes. So most of the volcanic eruptions happen or occur along this belt. That is why also the earthquakes due to the volcanic eruptions also happen or occur along this Pacific seismic belt. So this belt borders the Pacific Ocean. This seismic belt borders Pacific Ocean and covers different countries: New Zealand, Mexico, New Guinea, Japan, Philippines, Alaska, North America, Canada, United States means North American United States, and South America is here, Guatemala, Chile. These are the different countries which are located along this seismic belt. So this seismic belt surrounds the Pacific Ocean. So one important thing is there that almost more than 70% of earthquakes which occur over the globe occur in this belt, while as the other two belts contribute only up to 30 or 20% of earthquakes which occur over the globe. So, for easy understanding, I will repeat: seismic belts of the world which we are discussing, as you know, हमारे ग्लोब पे, हमारे वर्ल्ड में जो सिस्मिक बेल्ट्स है, तीन बेल्ट्स में इनको तकसीम किया गया है. इनको हम दूसरे लफ्जों में अर्थक्वेक एपिसेंटर्स भी कहते हैं. कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, जलजले आ जाते हैं. ये जो अर्थक्वेक एपिसेंटर्स हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, बल्कि इस पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया में. लेकिन ये एक नैरो बेल्ट्स जो है, कंटिन्यूअस बेल्ट्स, इन पे
ऑब्जर्व किया गया है कि किस किस जगह पे ज़्यादा एपिसेंटर्स, किस किस जगह पे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक्स होने के। इसमें हमने पहले डिस्कस किया पहला वाला बेल्ट जो सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट है, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे मेडिटेरेनियन एंड ट्रांस एशियाटिक बेल्ट को कवर करने के लिए, और थर्ड वन के लिए और एक क्लास ले लेंगे ताकि हम आसानी से उसको समझ पाएंगे, जिसमें हम मिड ओशियनिक रिज एंड द अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम बेल्ट कंप्लीट करेंगे। आज के इस क्लास में हम सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट एक जिसका नाम है, ये बेल्ट जो है पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है, बॉर्डर बनाता है, यानी पैसिफिक ओशन जो है इसको बहैसियत बॉर्डर एक दीवार की शक्ल में ये जो हमारा सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको। इस पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द चारों ओर अब सर्कुलर शेप में जो कंट्रीज इसको कवर करते हैं इस पे मौजूद है, पैसिफिक ओशन को कवर करते हैं, और इस सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे जो कंट्रीज मौजूद है जो कभी कभार इन जलजलों के शिकार हो जाते हैं, उनके नाम क्या क्या है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, न्यू गिनिया कंट्री है, मैक्सिको आप जानते हैं, फिलीपाइंस, जापान, जैसे नॉर्थ में इलास्का, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के, और इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड में वो साउथ अमेरिका वगैरह, इंडोनेशिया भी है। ये सारे ग्वाटेमाला, ये सभी कंट्रीज इसी बेल्ट पे है, अलोंग दिस बेल्ट दे आर लोकेटेड। सो आपको जहन में थोड़ा सा ये, जिस तरह हमने पहले क्लास में भी, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वॉल्केनोस, उसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने पढ़ा, वो यही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने जब वॉल्केनिक इरप्शंस के ज्यादा चांसेस जो इसी पैसिफिक रिंग के ओर है, सो नेचुरली जब हम ये चीज जानते हैं कि यह चीज हमने ऑब्जर्व किया है, फाइंड किया गया है कि इसी के ऊपर ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जाहिर सी बात है जब वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होते हैं विद द रिजल्ट, नतीजा ये है कि volcano eruptions are one of the cause of earthquakes. So that is why कि यहीं पे earthquakes भी ज्यादा होते हैं, और इसी बेल्ट को सर्कम पैसिफिक सिस्टम बेल्ट भी कहा गया है, और इसमें जो कंट्रीज है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और earthquake एपिसेंटर्स भी इसी सिस्मिक बेल्ट के ऊपर ज्यादा है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे मेडिटेरेनियन एंड ट्रांस एशियाटिक बेल्ट को कवर, जिसको अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट कहते हैं, और मिड ओशियनिक रीजन एंड अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम बेल्ट के लिए हमें और एक क्लास लेना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह से इनको समझ सकें। ये तीन जो लिहाजा जो ये हमारे अर्थक्वेक एपिसेंटर्स है ओवर द ग्लोब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इनको तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीन सिस्मिक बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आज हमने कवर किया है सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट, और इसमें खास बात है मोर देन 70% ऑफ अर्थक्वेक्स occur in this belt।